Hello everyone, welcome to my YouTube channel Python Brains. Hope you all are well students. So student, as you already know from our Python series in the previous videos, we finished the topic random module and it's all the functions. In today's topic, we learn about the statistics module with its all functions. This topic help us in class 11th also and in class 12th also, according to the CBSE syllabus. So students, in statistics module, we have three functions, mean, median and mode, that we learn in today's session. If you are new to my channel, students, then please subscribe my channel. Your one subscription, your one share, your one like gives us motivation to do better for all of you. So students, first of all, we learn what is statistic module, how it help us. So statistics module is a built-in module, students. Okay, basic built-in module hai. Okay, and this module help us in what? This module help us to calculate mathematical statistics of numeric data. Okay, student. Simply, if someone asks what is statistic module, so it is a built-in module and this helps us in calculating the mathematical statistic problems, okay, based on the numeric data. How we can import the statistic module? कैसे import करेंगे हम statistic module को? So how we can import statistic module, students? That we write import and then statistic. Import or the module name, okay? Now first function is student mean function. A mean function कैसे काम करता है? How we can use that? So this function is used to calculate the average of the given data. What is the meaning of average? Suppose that I am having 5 numbers और 5 नंबर का मुझे मीन निकालना है. So मैं क्या करूंगी? उन 5 नंबर्स को ऐड करूंगी and divided by number of terms means divided by 5, right? So mean is equal to what? Add up all the given values and divide by the how many values are there. Okay, student. How we can use the mean function? So अगर हमें किसी भी मॉड्यूल का कोई भी फंक्शन यूज करना है तो हम कैसे करते हैं? हम पहले मॉड्यूल का नेम लिखते हैं, डॉट फंक्शन का नाम एंड द डेटा वट एवर यू जस्ट वॉन्ट टू पास. So where data is required, data must है यहाँ पर. Okay, the data values to be used can be any numeric sequence list or iterator, right? अगर डेटा आपका एम्प्टी होता है देन इट रिटर्न्स अ स्टैटिस्टिक्स एरर. ये भी आप ध्यान रखेंगे. मीन्स अगर आपके ब्रैकेट को एम्प्टी छोड़ते हैं मीन्स यहाँ पर कोई भी डेटा नहीं दे रहे हैं देन इट शोज एन एरर. ओके, अब यहाँ पर हम देखते हैं मीन के कुछ एग्जाम्पल, स्टूडेंट. सबसे पहले मैंने क्या किया? मैंने अपने मॉड्यूल को इंपोर्ट किया, इंपोर्ट स्टैटिस्टिक्स, राइट? एंड देन सिंपली आई राइट स्टैटिस्टिक्स डॉट मीन और यहाँ पर मैंने एक लिस्ट पास कर दी. ओके, तो उस लिस्ट का क्या हुआ? मीन निकलकर प्रिंट हो गया. नेक्स्ट मैंने क्या किया? मैंने यहाँ पर एलियास यूज किया. ये भी मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था स्टूडेंट्स, दैट हाउ वी कैन यूज द एलियास. एलियास होता है डुप्लीकेट नेम. अब यहाँ पर जब भी मैं इंपोर्ट करूंगी स्टैटिस्टिक्स मॉड्यूल को, अगर मुझे उसका कोई भी फंक्शन यूज करना है तो वहां पर मुझे मॉड्यूल का नाम लिखना पड़ेगा. बट दैट इज अ बिग नेम, आई डोंट वांट टू राइट दिस. ओके, सो मैंने इसको एक निक नेम दे दिया पी. ओके, सो अभी मैं क्या करूंगी? पी डॉट मीन लिखूंगी. ओके, एंड देन हेयर आई एम पासिंग वन टपल. इसने उसका मीन निकाला. अगर आप पहले से ही एक लिस्ट को एक वेरिएबल में स्टोर कर रहे हो और आप उस वेरिएबल को पास कर रहे हो देन ऑल्सो इट इज ओके, नो प्रॉब्लम इन दैट केस. ओके, ये भी आपका वर्क कर सकता है. देन अगर यहाँ पर आपने क्या किया? आपने लिखा पी डॉट मीन. ओके, पी डॉट मीन मीन्स यहाँ पर कोई भी डेटा आपने नहीं दिया. दिस इज अ एम्प्टी वन. ओके, अगर आपने उसको एम्प्टी छोड़ा, राइट, देन व्हाट हैपन? इट शोज एन एरर हियर, राइट? अब next one important thing, mean is work for only the numeric data, students. That is a very important point. Mean is work for the numeric data. Okay, अगर आपने mean function के अंदर string को पास किया then also it shows an error, students. Okay, so this is the way how we can access the mean function, okay, on IDLE. अभी ये मैंने आपको एक स्क्रीनशॉट की हेल्प से समझाया है स्टूडेंट्स. ओके,
अब मैं आपको एक बार आइडियली पे भी प्रैक्टिकली इसको एक्सप्लेन करूंगी. दिस विल गिव यू अ बेटर अंडरस्टैंडिंग. ओके स्टूडेंट्स, सो how we can use this? Simply I write import statistics. Okay, अब मैंने लिखा है यहाँ पर simply statistics dot mean और यहाँ पर एक लिस्ट पास कर दी सिंपल and my mean is here, right? अब now I don't want to write this statistics again and again, so here I am giving a nickname that is S. So I write here S dot mean and here I am passing one tuple. Okay, so it is there. Clear? Now, if I just want to store my list in a variable, then also not a problem. Simply I write as dot mean and pass that data here. Okay, but if I miss that data part, students, then it shows an error. Or if I pass any string value there, okay, then what happened, that also I just want to show you. It also shows an error because mean function आपका न्यूमेरिक वैल्यू पर काम करता है, वो आपका स्ट्रिंग वैल्यू पर काम नहीं करता है स्टूडेंट्स. ओके, okay, now next to the median function. Now what is the median function, student? The statistics dot median method calculates the median middle value of the given data set. Okay, median means middle value. अब मीडियन निकालने के लिए जब मैं मैथमेटिकली इसको देखती हूँ, देन वी हैव अ टू थिंग्स स्टूडेंट, दैट नंबर ऑफ टर्म्स हमारी ऑड भी हो सकती हैं, नंबर ऑफ टर्म्स हमारी इवन भी हो सकती हैं, राइट? अब सपोज दैट 5 टर्म्स है मेरे पास, 5 टर्म्स हैं तो मिडिल वैल्यू थर्ड टर्म हो जाएगी, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम. बट इफ आई एम हैविंग 6 टर्म, देन व्हाट हैपन, वहां पर मिडिल वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? सो अगर आपके पास इवन नंबर ऑफ टर्म्स हैं तो वो क्या करेगा, वो मिडिल टू वैल्यूज का मीन निकाल देगा और तब आपको एज अ मीडियन वो रिटर्न करेगा. ओके स्टूडेंट, so this is the way that how we can calculate the median. And इसमें एक और important चीज होती है स्टूडेंट, that this method also sort the data in the ascending order before calculating the median. मीडियन निकालने से पहले वो आपके डेटा को पहले ascending order में sort करेगा. ओके, this point I already discussed it with you, that if the number of data values is odd, it returns the exact middle value, right? And if the number of data values is even, it returns the average of the two middle values. Okay, so this is the way how it works, students. Now, syntax of median. Syntax of median, how we can work with a median. सेम थिंग, जैसे आप मीन यूज कर रहे हो ऐसे ही आपको मीडियन भी यूज करना है. तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, मॉड्यूल का नाम डॉट मीडियन एंड देन द डेटा. यहाँ पर भी डेटा आपका कंपल्सरी है, आप डेटा को मिस नहीं कर सकते हैं. अगर आपने डेटा को एम्प्टी छोड़ा है देन इट शोज एन एरर स्टूडेंट्स. ओके, नाउ कुछ एग्जांपल्स देखते हैं. लाइक हेयर आई एम गिविंग 1 2 3 4 5, ये मेरी एक लिस्ट है ऑलरेडी, मैंने उसका मीडियन निकाला, देन दिस इज अ मिडिल टर्म 3. ओके, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर 6 टर्म्स है, सो ये क्या करेगा, 3 + 4 डिवाइडेड बाय 2. ओके, जो मिडिल टू टर्म्स है उनको ऐड करके डिवाइडेड बाय 2 करेगा, तब वो आपको मीडियन वैल्यू रिटर्न करेगा. ओके, so this is the way how the median function work. Now let's check this part on ideally also students. I'm having this list, okay, और मैंने सिंपली यहाँ पर लिखा s dot मीडियन और इसमें मैंने एल लिस्ट को पास किया. सो मेरा मीडियन 3.5 आया बिकॉज इवन नंबर ऑफ टर्म्स है मेरे पास. अब यहाँ पर मैं एक और लिस्ट ले लेती हूँ, दैट इज अनसॉर्टेड लिस्ट. ठीक है, ओके, ये मेरी अनसॉर्टेड लिस्ट है स्टूडेंट्स. ओके, अब यहाँ पर मैंने लिया एस डॉट मीडियन और इसमें मैंने एल को पास आउट कर दिया. ठीक है, सो माई वैल्यू इज 3.
अब कुछ स्टूडेंट्स का क्वेश्चन होता है कि मैम आपने बोला था कि वो हमारी लिस्ट को सॉर्टेड कर देता है, तो अगर मैं एल को प्रिंट करूंगी, सो उसने सॉर्टेड किया, बट वो आपकी एल लिस्ट में चेंज कुछ नहीं हो रहा है, वो इंटरनली उसको वर्क कर रहा है, सॉर्ट करके मीडियन निकाल रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपकी ओरिजिनल लिस्ट इन प्लेस पे वो कुछ चेंज नहीं कर रहा है। ओके, उसने इंटरनली उसको सॉर्ट किया और आपको मीडियन वैल्यू दे दी, राइट। आपकी लिस्ट में, ओरिजिनल लिस्ट में वहां पर कोई भी चेंज नहीं हो रहा है। ओके, अब नेक्स्ट आई एम हैविंग that if I just do this blank, then it shows an error. Okay, और इसमें भी अगर आप स्ट्रिंग वैल्यू पास करते हैं then also it shows an error. ये भी आपका न्यूमेरिक वैल्यू के साथ स्टूडेंट्स काम करता है। ओके, स्टूडेंट, नाउ मोड फंक्शन। मोड फंक्शन कैसे काम करता है? मोड मेथड कैलकुलेट द मोड। मोड का मतलब जो वैल्यू आपके डेटा में सबसे ज्यादा रिपीट हो रही है, मोस्ट रिपीटेटिव वैल्यू। ओके, जो भी वैल्यू, मान लीजिए आपने 10 आइटम्स दिए, 10 वैल्यूज दिए, सो जो भी वैल्यू सबसे ज्यादा टाइम्स रिपीट हो रही है, सो वो उस केस में उसको रिटर्न करेगा। ओके, सेम इसमें भी आपका रहता है कि अगर आप डेटा को एम्प्टी छोड़ते हैं तो वहां पर वो आपको एरर शो करेगा। अब यहाँ पर मैं कुछ एग्जांपल्स के साथ पहले आपके साथ डिस्कस करूंगी, देन वी मूव टू द आईडीएलई फॉर प्रैक्टिकल। ओके, सो यहाँ पर देखो मेरे पास एक लिस्ट है स्टूडेंट्स। अब वन कितनी टाइम्स आ रहा है? 1 2 3 4 5 टाइम्स आ रहा है, ठीक है। तो मैंने लिखा पी डॉट मोड एल। ओके, एल में एल का मोड बताओ। सो सबसे ज्यादा टाइम वन आ रहा है तो वन रिपीट हो गया। अब एक क्वेश्चन आता है, मैंने एक लिस्ट ली, इसमें वन भी 2 टाइम्स आ रहा है और टू भी 2 टाइम्स आ रहा है, तो अब मोड क्या होगा? जो पहले आएगा, जो पहले वैल्यू है, ठीक है। अब इसमें वन 2 टाइम्स आ रहा है और टू भी 2 टाइम्स आ रहा है, राइट। सो पहले मोड कौन सा है? पहले क्या है? तो पहले इसमें वन आ रहा है, तो इसलिए उसने वन को प्रिंट किया। ओके, इज इट क्लियर? यहाँ पर कोई डाउट है आपको? then you can write it in the comment section, student. Okay, or I will provide my mail id also. If you have any query then you can write a mail also. देन अगेन यहाँ पर है हमारा L इज इक्वल टू दिस। अब इसमें देखो कि टू भी 2 टाइम्स है, वन भी 2 टाइम्स है, लेकिन पहले क्या आ रहा है? पहले यहाँ पर टू आ रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि टू इसने दे दिया यहाँ पर, जो भी वो किसको रिटर्न करेगा? रिटर्न द फर्स्ट एनकाउंटर, जो पहले आपको मिल रहा है। ओके, वो उसको रिटर्न कर रहा है। क्लियर? अब आगे देखते हैं हम इसमें। यहाँ पर देखो, अब फर्स्ट वैल्यू का मतलब ये नहीं है कि वो फर्स्ट वैल्यू दे रहा है। फर्स्ट वैल्यू का मतलब ये है कि मोड, जहां पर हम फ्रीक्वेंसी काउंट कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ये नहीं है कि फोर आएगा, देखो टू भी 2 टाइम्स है, वन भी 2 टाइम्स है, लेकिन टू पहले है तो इसलिए यहाँ पर टू प्रिंट होगा। ओके, अब नेक्स्ट आता है, अब यहाँ पर देखो इनमें सबकी फ्रीक्वेंसी वन है। ओके, इसकी भी फ्रीक्वेंसी वन है, इसकी भी फ्रीक्वेंसी वन है, इसकी भी फ्रीक्वेंसी वन है, तो यहाँ पर वन आ जाएगा। अब मीन में और मीडियन में हमने पढ़ा कि वो न्यूमेरिक डेटा के साथ काम करता है, राइट। अब जब वो न्यूमेरिक डेटा के साथ काम कर रहा है स्टूडेंट्स, ओके, और वो स्ट्रिंग के साथ काम नहीं कर रहा, एरर दे रहा है, बट मोड फंक्शन आपका स्ट्रिंग के साथ काम करेगा। हाउ इट इज वर्क? देखो 1 2 3 1, इसको काउंट ही तो करना है किसकी फ्रीक्वेंसी है, इसमें कोई कैलकुलेशन या कोई डिवीजन नहीं है। वहां पर क्या हो रहा था? डिवीजन हो रहा था, इसलिए स्ट्रिंग के साथ वो काम नहीं कर सकता। इसको क्या करना है? इसको सिर्फ फ्रीक्वेंसी काउंट करनी है। सो मैंने यहाँ पर एल का मोड निकाला, वन की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो उसने वन को प्रिंट कर दिया। यहाँ पर आपने कुछ वर्ड्स दे दिए, पाइथन, लर्न पाइथन। सो पाइथन की फ्रीक्वेंसी 2 टाइम है तो इसने पाइथन को यहाँ पर प्रिंट कर दिया, ठीक है। सो सिंपली ये आपका स्ट्रिंग के साथ काम कर सकता है, ठीक है स्टूडेंट्स, जबकि मीन और मीडियन आपका स्ट्रिंग के साथ काम नहीं करता है। ओके, राइट। चलिए अब आगे देखते हैं एक बार हम इसमें। लाइक आई एम हैविंग वन लिस्ट, एल इज इक्वल टू 1 2 3 4 1 5 6, right? Okay, and then I write s dot mode of L. Okay,
so 1 is there क्योंकि 1 की फ्रीक्वेंसी यहाँ पर सबसे ज्यादा है, राइट। अब एक और लिस्ट लेते हैं स्टूडेंट, जिसमें मैं आपको बताती हूँ कि कुछ सेम नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज हमने ली, राइट। ओके, देन आई राइट एस डॉट मोड, ओके, और इसमें मैंने ले लिया एल, ओके। तो यहाँ पर भी मैंने क्या किया, उसको 1 दे दिया। क्लियर? ठीक है, क्योंकि 1 की फ्रीक्वेंसी भी यहाँ पर 2 है और 2 की फ्रीक्वेंसी भी 2 है, बट फर्स्ट एनकाउंटर क्या है, फर्स्ट एनकाउंटर आपका 1 है, तो इसलिए उसने यहाँ पर क्या किया, 1 प्रिंट किया, राइट। ठीक है, अब कुछ स्ट्रिंग डेटा लेकर देखते हैं स्टूडेंट। ठीक है, हाउ इट वर्क्स, लाइक मैंने यहाँ लिखा पाइथन फन पाइथन, ओके। तो अब चेक करेंगे एस डॉट मोड एल, ठीक है। तो पाइथन, क्योंकि पाइथन की फ्रीक्वेंसी यहाँ पर मैक्सिमम है, ओके स्टूडेंट्स। सो दिस इज द वे स्टूडेंट हाउ द स्टैटिस्टिक्स मॉड्यूल वर्क। I explained here 3 functions of statistics module: mean, median, and mode. Okay. So students, if you have any doubt, then you can write us in the comment section, or you can write us a mail also. If you like the video students, do press the like button, press the bell icon for all upcoming updates. Keep watching, keep studying.